ઓમ શાંતિ। આજે તારીખ 3/5/2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। બાબાએ આજે કયા અભ્યાસની વાત કરી? આત્મ અભિમાની બનો। માના બાબા કહે છે ચાલતા ફરતા ઉઠતા બેઠતા એક જ અભ્યાસ પાકો કરો આત્મ અભિમાની સ્થિતિનો, કે હું આત્મા છું, હું આત્મા ચાલી રહી છું પગ દ્વારા, હું આત્મા કર્મ કરી રહી છું। તો જ્યારે આત્મિક સ્થિતિનો અભ્યાસ પાકો થશે તો જ ऊंचाમાં ऊंची उन्नति थसे। प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेंगी? बाबानी चौक्कस याद माना सेकंड मननी अंदर बाबा एवा केवा बाळकोनी अंदर रहसे? तो उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। કોની બુદ્ધિની અંદર બાબાની યાદ સદા રહે છે? કે જેને બાબાને સંપૂર્ણપણે ઓળખ્યા છે, એમના ઓરિજિનલ સ્વરૂપે એમને ઓળખ્યા છે, એવા બાળકોની બુદ્ધિની અંદર બાબાની યાદ એક્યુરેટ રહેતી હોય છે। કઈ બચ્ચે કહતે हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करे? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। કારણ કે ભક્તિમાં શું કહે છે કે ભગવાન તો કેવા છે, પરમાત્મા કેવા છે? અખંડ જ્યોતિમય, મને તેજોમય છે કે જેનું તેજ આપણે સહન બી ના કરી શકીએ એવા તેજોમય પરમાત્મા છે। પરંતુ પહેલા એ નિશ્ચય પાકો કરો કે પરમાત્મા અખંડ જ્યોત નથી, પરંતુ એ એક સૂક્ષ્મ અતિ સૂક્ષ્મ બિંદુ સ્વરૂપે છે। अगर आ बात पाकी निश्चय बुद्धि बेसी जशे कि परमात्मा एक ते ज्योति बिंदु स्वरूपे छे, बिंदु रूपे छे, त्यारे एमनी याद एक्यूरेट रही शके छे। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। बाबा के छे बधा बाळको याद में बैठा छे। मन मना भव, मन मना भवनो अर्थ शुं थाय? પોતાને આત્મા સમજી દેહના સંબંધોને ભૂલી અને પરમાત્માને યાદ કરો। परंतु यह मन मना भव अक्षर संस्कृत में है। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह अक्षर बोले नहीं है। બાબાને જ્યારે રાજયોગ શીખવાડ્યું ત્યારે બાબા સંસ્કૃત શબ્દનો પ્રયોગ જ નથી કરતા। યહ તો સંસ્કૃત જાણતી નહીં। શિવ બાબા સંસ્કૃતને જાણતા જ નથી। શિવ બાબા ખાલી એક જ ભાષા જાણે છે, કઈ? हिंदी। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। शिव बाबा नो रथ माना ब्रह्मा बाबा भले हिंदी भाषा जाने छे, सिंधी भाषा जाने छे, इंग्लिश भाषा जाने छे, परंतु परमात्मा जे ज्ञान आपे छे तो परमात्मा नु ज्ञान तो मात्र हिंदी में होय छे। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ तो हिंदी भाषा ही चलती है। बाबाना घर में एक ज भाषा चाले छे, हिंदी भाषा। भले कोई
વિદેશથી આવ્યા હોય, એમને હિન્દી સમજમાં નથી આવતું, કોઈ કન્નડ ભાષા જાણે છે, કોઈ તેલુગુ ભાષા જાણે છે, બધા હિન્દી જાણતા નથી હોતા. તો ત્યાં વ્યવસ્થા છે કે ટ્રાન્સલેશન દ્વારા એ લોકો એ ભાષાની અંદર પરમાત્માનું જ્ઞાન જાણી શકે, સમજી શકે. પરંતુ પરમાત્માના મહાવાક્યો તો માત્ર હિન્દી ભાષામાં જ ઉચ્ચારિત થતા હોય છે. यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है. इसमें कोई कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती. यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करना है. બાબા કહે છે બહુ ઊંડું જ્ઞાન યાદ રહે કે ન રહે એના સાથે કોઈ મગજમારી નથી, પરંતુ એક શબ્દ તો યાદ રહેવો જોઈએ, બાબા. અને બાબાની યાદ કરતા રહેવાનું છે, એમની યાદ ભૂલાય નહીં. ગોડ કો અથવા ઈશ્વર કો अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद न करे यह मुश्किल है. याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है. બાબા કહે છે યાદ તો બધા જ કરે છે, ચાહે ભક્તિમાં ચાહે જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી, પરંતુ યાદ કરવાની રીત બધાની અલગ અલગ છે. જેવું જેને પરમાત્માને ઓળખ્યા છે એ રીતે પરમાત્માને યાદ કરે છે. बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं. शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी चौड़ी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं. શાસ્ત્રોમાં શું કર્યું છે? સૃષ્ટિ ચક્રનું આયુષ્ય લાખો વર્ષનું કરી દીધું છે. તો બાબા આવીને પહેલા તો પોતાની ઓળખ આપે છે કે પોતે કોણ છે, પછી સૃષ્ટિ ચક્ર વિશે સમજાવે છે. बहुत बड़ी बात भी नहीं है. अहल्याए बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? यह तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं. बाबा अक्षर कोई नया नहीं है. બાબા કે છે આ જ્ઞાન એટલું સરળ છે કે ચાહે કોઈ નાનું બાળક હશે, ચાહે વૃદ્ધ મહિલા હશે, ચાહે અનપઢ હશે, છતાંય આ જ્ઞાનને સહજતાથી સમજી શકે છે. પૂરું ના સમજાય પરંતુ બાબા અક્ષર તો સમજમાં આવશે. शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है. सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं. हम सर्व आत्माओं का एक बाप है. सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं. सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं. બાબા કહે છે કે કોઈ મંદિરમાં જતું હોય તો મંદિરમાં જાય તો શિવલિંગને જુએ તો શું યાદ આવે? શિવ પરમાત્મા યાદ આવે છે, ભગવાન યાદ આવે છે, અને એમને નિરાકાર બી કહેતા હોય છે. તો એક સર્વ આત્માઓના પિતા છે. આપણે સૌ મનુષ્ય જીવ આત્માઓ છે, તો જીવ આત્માઓના પિતા એક પરમ પિતા પરમાત્મા છે. તો એમને સર્વ ધર્મની આત્માઓ બી પરમાત્માને જરૂર યાદ કરે છે. કોઈ ગોડ કહે છે, કોઈ ઈશ્વર કહે છે, કોઈ પરમેશ્વર કહે છે, કોઈ અલ્લાહ કહે છે, બધા નામ અલગ અલગ આપ્યા પરંતુ પરમાત્મા તો એક છે. वह है परम धाम में रहने वाला बाबा, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं. तो अब सिर्फ बाप को याद करना है. શિવ બાબા ક્યાંના રહેવાસી છે? પરમધામના. અને આપણે બી પરમધામના રહેવાસી છીએ. તો એક બાબાને યાદ કરવાના છે. ચાહતે ભી હૈ હમ પાવન બને, બુલાતે ભી હૈ હે પતિતો કો પાવન કરને વાલે આઓ. શું કહીને બોલાવે છે પરમાત્માને?
हे पतितों को पावन करने वाले आवो। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी दुनिया हो गई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? नया भारत माना જ્યારે સતયુગ હતો કે જ્યાં દેવી દેવતાઓનું રાજ્ય હતું, તો એ જ્યારે નવી દુનિયા હતી તો એની આગળ શું હતું? તો નવી દુનિયાની આગળ પુરાની દુનિયા હશે, પણ પુરાની દુનિયાનું પરિવર્તન કરી પરમાત્મા નવી દુનિયા બનાવે છે। તો વચ્ચે કયો સમય હોય છે? સંગમ। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना समझ नहीं सकते, કારણ કે બધા મનુષ્યોને સંગમ યુગની ખબર નથી હોતી। જે બાબાના બાળકો બને છે તો બાબાના બન્યા પછી ખબર હોય છે કે વર્તમાન સમય સંગમ યુગ ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ જેને જ્ઞાન જ નથી એવી આત્માઓને અગર સહજતાથી સમજાવવું છે તો એ રીતે સમજાવો કે નए के आगे पुराना था। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। नवी दुनिया पुरानी दुनिया અને આ બંને વચ્ચેનો જે સમય હોય છે એને સંગમ કહેવાય છે। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा में समझ आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। माना बाबा के છે મને બોલાવતા તો ઘણા સમયથી આવ્યા છું। જ્યારથી તમારા જીવનમાં કંઈક ને કંઈક દુઃખ આવવાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી તમે મને બોલાવતા આવ્યા છો કે હે પતિત પાવન आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हूँ। उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होंगी। कहते हैं, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेंगे। शास्त्रों में શું લખ્યું છે? હજુ કળયુગી दुनिया पतित दुनिया કેટલો સમય ચાલશે? 40,000 वर्ष હજુ ચાલશે। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी तुम रोशनी में हो। हाँ, दुनियावाળા કેવા છે કે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં છે, કારણ કે હજુ ખબર નથી કે કળયુગનો અંત છે। જેવી રીતે કહેવાય છે કે જે પ્રદર્શનીના ચિત્રો બન્યા તો પ્રદર્શનીના ચિત્રોમાં છેલ્લું ચિત્ર બ્રહ્મા બાબાએ એવું બતાવ્યું હતું કે શેષમાંના અંતિમ સંસ્કારની જેમ લાકડા ગોઠવેલા છે, અંતિમ સ્થાન છે અને એના ઉપર પૃથ્વીનો ગોળો બતાવ્યો છે અને એ બી કેવી રીતે ઓક્સિજન લઈ રહેલો છે અને એક બાજુ સાધુ તપસ્વી બતાવ્યા છે। તો જે પૃથ્વીનો ગોળો બતાવ્યો છે તો એ બતાવે છે કે હવે પૃથ્વીનો અંતિમ સમય છે અને જે સાધુ સંત એક બાજુ બતાવી રહ્યા છે તો એ બતાવે છે કે હજુ તો कलयुग बच्चा है। तो बाबा कहे छे कलयुग बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आ चित्र बनावड़ायु तो ब्रह्मा बाबाए, तो ब्रह्मा बाबाए ए समय बाबाए आपने रोशनी आपी कि यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि होता नहीं। माना ज्यां सतयुग छे तो सतयुगी दुनिया में कोई उपद्रव माना अति में कोई रोग फाटी निकले तो आपणे नथी कहेता आ रोगनो उपद्रव छे,
પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો છે તો પ્લેગનો ઉપદ્રવ છે, તો અત્યારે કોરોના કાળ છે તો કોરોનાનો મને જે નકારાત્મક વસ્તુઓ અતિમાં ફેલાઈ જાય તો એને કહેવાય છે ઉપદ્રવ. તો બાબા કે છે સતયુગી દુનિયામાં આવા કોઈ ઉપદ્રવ આદि હોતા નથી. तो उपद्रव होता ही है रावण राज्य में. यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों से सुनते हो. कौन सुनता है? બાબા સમજાવી રહ્યા છે આપણને સન્મુખમાં, તો આપણે સન્મુખમાં એમના સામે બેસીને કાનો દ્વારા સાંભળીએ છીએ. તો કોણ સાંભળે છે? તો આત્મા સુનતી है. तो आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है. तो आत्मा ने कई खुशी થાય છે કે સ્વયં પરમાત્મા ફરીથી આવીને આપણને મળ્યા છે. बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो. બાબા પાસેથી 5000 વર્ષ પહેલા વારસો મેળવ્યો હતો, હવે ફરી બાબા વારસો આપવા આવ્યા છે. તો બાબા કહે છે અબ મુझे याद करो. इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है. जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने. क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए. सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं. तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है. अभी तो पवित्रता भी नहीं रही, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है. અત્યારે દુનિયા કેવી છે? ક્યાંય પવિત્રતા જ નથી. બાબા કહે છે આ સમગ્ર સૃષ્ટિ વિકારોની અંદર ફસાયેલી છે. તો અત્યારે દુનિયાની અંદર ગંદકી ફેલાયેલી છે. मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं है. દુનિયામાં મનુષ્ય કેટલા હેરાન થાય છે. બાબા કહે છે અહીંયા તો કોઈ હેરાન થવાની જરૂરત જ નથી. बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसीलिए तो हैरान होते हैं. बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं. माना અહીંયા કોઈ હેરાન થાય, કોઈ મનુષ્યને કોઈ તકલીફ થાય એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. બાબા કહે છે લખવાની બી હું તસ્તી નથી આપતો. यहाँ तो यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं. तो धारण करने के लिए कोई लखे छे तो केम लखे छे कि याद रहे तो धारण करिए. जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाई होती है, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं. बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं. तुमको याद क्या करना है? एक बात. જેવી રીતે ડૉક્ટર છે તો ડૉક્ટર પાસે કેટલી દવાઓ હોય છે, તો એમને કેટલી બધી દવાઓ યાદ રાખવી પડે છે. કોઈ વકીલ છે તો વકીલને આખા જે કાયદાઓ છે ભારતના બંધારણના, તો બધા જ કાયદાઓ યાદ રાખવા પડે છે, કારણ કે એમને બોલવાના હોય છે, એ પ્રમાણે કાર્ય કરવાનું હોય છે. બાબા કહે છે તમારે અહીંયા તો એટલું બધું યાદ બી નથી રાખવાનું, મુખ્ય એક વાત જ યાદ રાખવાની છે, અને એ બી કેવી છે? एकदम सहज. અને એ બી કઈ વાત યાદ રાખો? तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो. बस आ एक ज बात याद राखो, शिव बाबा ने याद करो. वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है. ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है. दुनिया वाला पूछे कि भगवान क्या है तो शू कहेशे? का तो नाम रूप थी न्यारा बतावी देशे, का तो बतावशे कि भगवान तो
સર્વવ્યાપી છે, હરેક જગ્યાએ છે, आत्मा सो परमात्मा, बधी ज बातों आवी जैसे। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। एक बाजू नाम रूप थी न्यारा बताव्या, बीजी बाजू सर्वव्यापी बताव्या। तो बाबा के बंने में फरक केटलो छे? नाम रूप थी न्यारा अने सर्वव्यापी अर्थ तो समझो। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज ही है नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई ना। एक तो नाम रूप थी न्यारा अने बीजी बाजू कुतरा बिलाड़ा में बताव्या, तो कई रीते बन्ने तो विरोधी बातों थई गई ने। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। बाबा शू कहे छे? पोतानो परिचय आपे छे अने कहे छे मने याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। तो बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, कारण कि योग अक्षर योग शब्द सांभळीने ज लोकोने मुश्केली लागे छे। तो बाबा कहे छे योग अक्षर ज काढी नाखो, एक अक्षर याद राखो, बाबा को याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही गले लग जाता है। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है या नहीं? बाळक होस्टेल में रहतुं होय का तो कोई बहार गयुं होय ने पाछुं परत फरे छे तो माँ बाप ने जुए तो जोईने तरत ज गळे लागी जाए। तो बाबा कहे छे ए वखत कोई बाळक विचारवा लागशे कि आ मारा माँ बाप छे के नहीं? तो इसमें सोच करने की क्या बात है? तो बाबा कहे छे कि मने ओळखवामां विचारवानी सी जरूरत छे। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूंटा था। सोमनाथ नु मंदिर भी केटलुं मोटुं बनाव्युं हतुं के जेने सोना हीरा जवाहरातोथी मळ्युं हतुं। तो मोहम्मद गजनवी केटली वार लूंटवा आव्यो तो? कहेवाय छे शास्त्रों में लख्युं छे कि मोहम्मद गजनवीए 17 वार चढ़ाई करी थी। अने सोमनाथ ने लूंटवा जता पहला मोहम्मद गजनवीए एटली मोटी योजना बनावी थी कि सोमनाथ ने लूंटता पहला एने नाना नाना घणाए मंदिरों ने लूंटी नाख्या था। कि एक पछी एक राजा ने मित्र बनावतो गयो, लूंटतो गयो अने आगळ वधता वधता पछी छेल्ले सोमनाथ ने लूंटवा आवे छे। तो बाबा कहे छे सोमनाथ का मंदिर भी भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आ गई। बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। पूजा तो करता था, परंतु ए खबर नहीं कि आ तो बधु जड़ वस्तुओं छे। जरूर चैतन्य में आया होगा तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। पत्थरनी पूजा करीए छे, परंतु ए खबर नहीं कि जरूरथी चैतन्य में तो क्यारेक आवा हशे, माटे एमनी आवी मूर्तिओ बनावी छे, प्रतिमाओ बनावी छे। कारण के कोई थई गयुं होय तो एने लगती प्रतिमा पछी बने ने। तो एटला माटे शिव भगवान आव्या हशे माटे तो शिव जयंती मनावीए छे। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है जेटली महिमा शिव बाबानी छे
એટલી મહિમા કોઈ બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકરની હોતી નથી। एक की ही महिमा गाते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है, शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। बाबा શું કહે છે? મને યાદ કરો અને મને યાદ કરવાનો બધાને એક સરખો અધિકાર છે, કારણ કે બધી જ આત્માઓ મારા બાળકો છો। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, बिंदी को तो कैसे याद करें। કેટલાક એવા બાળકો છે કે જેને પૂરા બાબાને ઓળખ્યા બી નથી, જ્ઞાનમાં ચાલે છે, કારણ કે જ્ઞાન થોડું ઘણું ગમ્યું હોય તો આવતા થઈ ગયા। તો કોઈ કહે છે બાબा किसको याद करे, क्योंकि आप तो बिंदी हो, बिंदी को कैसे याद करें। बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है? આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ, ચાહે ભક્તિમાં કરતા હતા, ચાહે જ્ઞાનમાં આવીને કરીએ છીએ, તો એ શું છે એ જાણો છો? તો કહ દેતે અખંડ જ્યોતિ स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं। तो बाबा કહે છે કે કોઈ મને અખંડ જ્યોતિ સ્વરૂપમાં યાદ નથી કરવાના, પહેલા એક્યુરેટ મને ઓળખો, પછી મને યાદ કરો। તો મને યાદ કયા સ્વરૂપે કરવાના છે? બિંદુ રૂપે મને યાદ કરો, અને એના માટે પહેલા તમે બિંદુ બનો અને પછી બિંદુ રૂપે મને યાદ કરો। તો બાબાએ પહેલા પોતાનો પરિચય આપ્યો, પછી બાળકોને બાબાએ સૃષ્ટિના આદि મધ્ય અંતના સમાચાર સંભળાવ્યા। ડિટેલ में भी तो नटशेल में भी, तो વિસ્તારમાં બી સમજાવ્યું અને સાર રૂપે भी ઘણું જ્ઞાન આપી દીધું। तो अब बाप कहते, बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो, क्योंकि मुझे ही पतित पावन कहते हो। बाबाए आज मुरली में કેટલી વાર કહ્યું કે મને યાદ કરો, મને યાદ કરો, કારણ કે બાબા જ પતિત પાવન છે કે જે આપણી આત્માને પાવન બનાવશે। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। तो आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। आत्मा पहला सतयुग में सतो प्रधान हती, परंतु जेम जेम आत्मा नीचे जन्म लेता लेता आवे छे तो तमो प्रधान पतित बनी गई छे। माटे ज आत्माओं परमात्मा ने पुकारे छे कि मैं पतित बनी हूँ, अब मुझे आप आकर पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित है तो दुखी है, जब पावन थे तो सुखी थे। माना જ્યારે સતયુગમાં હતા, પાવન હતા, ત્યારે સુખી હતા, અત્યારે પતિત બની ગયા તો દુઃખી છીએ।
तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। એટલા માટે તો આત્મા પરમાત્માને બોલાવે છે કે પરમાત્મા આવો ને આવીને મને પાવન બનાવો તો અમે દુઃખોમાંથી છૂટી જઈએ। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। पूरा दिवस चिंतन रहे कि हूँ आत्मा छूँ, हूँ आत्मा जज छूँ, आत्मा बेरिस्टर बनी छूँ, आत्मा राजा छूँ। एवी रीते बाबा कहे छे आत्मचिंतन करता रहो तो आने ज कहेवाय छे आत्म अभिमानी स्थिति। देह होते आत्म अभिमानी, भले शरीर में छीए पण शरीर द्वारा कर्म करवा छतां आत्म अभिमानी स्थिति। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी बाप ही बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लेन अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते ही आए हैं। सृष्टि चक्रનું આ નાટક છે અને આ નાટકમાં જે નોંધાયેલું છે એ અનુસાર આપણે પતિતમાંથી પાવન અને પાવનમાંથી પતિત બનતા જ આવ્યા છીએ। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए, अभी यह बात बोलो मत। बाबा कई बात याद अपावे छे। बाबा कहे छे ए बात ने क्यारे नहीं भूलो कि आपणे 84 जन्म लेता लेता अत्यारे नीचे आवी गया छे। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। पोतानी आत्मानु स्वनो दर्शन करता रहो माटे 5 स्वरूपनो अभ्यास करो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुकड़ खाना, बस क्या करना है। आज बाबा ने क्या कहा, कर्म करता चालता फरता उठता बैठता बाबा ने याद करो। एक तो आपणुं काम छे कारण के बाप बाळकोने समझावे छे कि मने याद करो। बस हमारा एक ही तो काम है, बाप को याद करना और रोटी टुकड़ खाना। टुकड़ो रोटली જોઈએ ને, બીજું શું જોઈએ? बस मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों को बाप गड़ी गड़ी कहते हैं। बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। बाबाए શું કહ્યું? पेटना માટે શું જોઈએ? टुकड़ रोटली। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, 1 पाव आटे का खाता है। કેટલું रोटली જોઈએ पेटने? दाल रोटी बस। 10 रुपये में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। बाबा कहे छे कि दाल रोटी खाईने भी पेटने पोषण आपी शको छो अने 36 प्रकारना पकवान खाईने भी पेटने पोषण आपी शको छो। 10 रुपया में भी पेट भराई जाए छे तो 10,000 में भी भराई शके छे। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं ना। बाबा कहे छे गरीब लोग शू खाए छे छतांय केवा छे। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो।
क्या कहा बाबा ने? रोटी टुक्कड़ खाओ और जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती ही नहीं। दाल रोटी જેવી કોઈ બીજી વસ્તુ છે? જાસ્તી લાલચ બી નહીં રહેની चाहिए। હવે કહે છે ખાવામાં બી જાસ્તી લાલચ બી નહીં રાખવાની। सन्यासी लोग क्या करते हैं? घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है। तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं? यह पार्ट कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। बाबा કહે છે જે 84 જન્મોનો આપણે ચક્ર લગાવીએ છીએ તો જે જન્મ લેવાનો પાર્ટ છે કોઈનો પણ બંધ થતો નથી। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया। नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। क्या जानते हैं? आ सृष्टि पर आ परिवार में आ घर में जे नाटक में नोंधायेलो तो ए अनुसार ज आव्या छे। अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं अने फरीथी राजगादी ड्रामा अनुसार ज मेळवीशुं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर? बाबाए शुं पूछ्યું કે નાટક આ જે સૃષ્ટિનું બનેલું છે એ સર્વશક્તિવાન છે કે ભગવાન સર્વશક્તિવાન છે? तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। परंतु बाबा शू कहे छे? कोईने भी पूछो कि भगवान सर्वशक्तिवान के नाटक सर्वशक्तिवान, तो कैसे कि भगवान सर्वशक्तिवान। परंतु बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिर को ले चढ़ जाते हो। बाबा कहे छे कि तमे मारे तो क्यारे आववानुं छे? आ पति तो दुनिया में आववुं पड़े छे कारण के हूँ पण ड्रामाना बंधन में बंधायेलो छुं। बाकी पछी ज्यारे सतयुगी दुनिया आवशे तमे जईने सुखी बनी जशो अने हूँ परमधाम में चाल्यो जईश। तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम्हारी किस पर सवारी है? शेर पर। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। बाबाए शुं कह्युं? कयो समय छे? हवे बाबाने अने वारसाने माना सतयुगी राजाने याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है। शिव बाबा कहीं राखे छे? ब्रह्मा बाबा राखता था पर शिव बाबा तो कहीं नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। बाबाए कहीं मात्र मने याद करो वारसो मળી જશે। કેટલું सहज છે।
याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। बाबानी याद थी ज तंदुरस्त बनीशु। यह है धारणा की बात। कई छे धारणानी बात? बाबाने याद करो अने बाबानी यादथी ज एवर हेल्दी, वेल्दी अने हैप्पी बनीशु। लिखने से क्या फायदा होगा? यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। जेवी रीते कोई आपने बात पाकी करावे कि आ बात भूलवानी ज नथी, आ वातने पाकी याद राखजो, तो आपणे शुं करीए? माताओ होय जे पुराना जमानानी माताओ हती शुं करता? पल्लू एक गांठ बांधी दे, कारण के गांठ जुए तो याद आवे कि आ वात मारे पाकी याद राखवानी छे। तो बाबा कहे छे तमे बी मननी अंदर एवी पाकी गांठ बांधी लो कि बाबाने अने वारसाने याद करवानुं छे। यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठूं? तो बाबा कहते, अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। જેવી રીતે લૌકિક પિતાની યાદ કેવી રીતે રહેશે? તો બાબા કહે છે એવી રીતે જ મને યાદ કરવાના છે। ઉઠતા બેઠતા ચાલતા ફરતા હરતા ફરતા બધું જ કર્મ કરો, પણ સાથે સાથે મને યાદ કરો, બસ બેડો પાર। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। केवा बनवानुं छे? स्वदर्शन चक्रधारी। अने जे 84 जन्मोनुं चक्र छे एने बुद्धिमां फेरवता रहो। माना 5 स्वरूपोने याद करो। बेहद बाप को याद कर, बेहद का वर्षा लेना है और पावन बनना है। दूसरे पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। बाबा कहे छे कोई भी वस्तुनी लालच ना होवी जोईए। आ खाऊं, पेलू खाऊं, आ पेरूं, आम करूं, तेम करूं। बाबा कहे छे जे मळे, जे छे आपणी पासे एमां खुश रहो। रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में रहना है, बस। वरदान, बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पाव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। माना जेनी मन बुद्धि बाबानी मर्यादा कई छे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। तो बाबानी मर्यादाओ छे एनी अंदर आपणी बुद्धि रहे छे, ए लकीरनी अंदर। तो आपणे बाबाना लकी अने लवली बाळको बनी जईए छे। जेवी रीते कहेवाय छे के रामायणमां જ્યારે લક્ષ્મણજીએ લક્ષ્મણ રેખા દોરી, તો એ લક્ષ્મણ રેખા શું હતી? એ મર્યાદાની રેખા હતી। પરંતુ જ્યાં સુધી માતા સીતા એ મર્યાદાની રેખાની અંદર હોય છે, ત્યાં સુધી કોઈ વિઘ્ન, કોઈ પરેશાની, કોઈ તુફાન એ અંદર આવી શકતું નથી। માના સ્વયં રાવણ પણ એ લકીરની અંદર પ્રવેશ કરી શકતો નથી, ચાહે એને સાધુનો વેશ ધારણ કર્યું છે છતાં પણ।
तो कोई तपस्वी भी એ મર્યાદાની લકીરની અંદર પ્રવેશ નહીં કરી શકે, પરંતુ જ્યારે આપણે આપણી મન બુદ્ધિ એ મર્યાદાની લકીરને પાર લાવીએ છીએ ત્યારે ઉદાસી, પરેશાની, તોફાન, વિઘ્ન બધું જ આવી જતું હોય છે અને અંદર રહ્યા તો બધી જ બાજુથી સેફ રહીએ છીએ। માટે બાબાએ કહ્યું कि बुद्धि रूपी पाव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसीलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। बाबाए आपने सर्व प्रकारनी प्राप्तिओ करावी छे, तो प्राप्तिओमांना अष्ट शक्तिओथी संपन्न आपणे मास्टर सर्वशक्तिवान छे। अने फकीर क्यारे बनीए? ज्यारे मर्यादानी लकीरनी बहार निकळ्या तो फकीर, तो फकीर माना मांगवावाळा। तो आपणे कोण छे? मांगवावाळा छे। आपणे मांगता नथी, लेवता नथी, परंतु देवता छे। स्लोगन: जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वही सेफ रहते हैं। तो बापना प्यारा तो पछी बनी शके, पहला केवा बनवानुं छे? न्यारा। तो न्यारा माना जेवी रीते कमळ कादवमां उगे छे पण ए कमळ कादव करता न्यारू होय छे, तो एवी रीते आपणे समाजनी अंदर छीए, परिवारनी अंदर छीए, संसारमां छीए, घर गृहस्थमां छो, पण ए बधानी वच्चे रहेवा छतां जेनी मन बुद्धि उपराम छे, न्यारी छे, ए ज परमात्माना प्यारा होय छे अने ए ज आत्माओ हर परिस्थितिमां सुरक्षित रहती होय छे। अच्छा, ओम शांति।